نظام علماء کرام حفاظ کرام حاضرین جلسہ اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا نامدار مدینی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ابھی صاحب قبلہ نے نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ صاحب قبلہ نے کہا بارگاہ حضرت سید شاہ علی حسین چشتی القادری المعروف پیر بنگالی بابا علی رحمت الرضوان کی بارگاہ میں جسمانی غذا کے ساتھ اب روحانی غذا کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت سید شاہ علی حسین چشتی یقیناً ان کے مریدین معتقدین اور خلفاء نے جسمانی غذا کو کھلایا ہے، اب حضرت شاہ علی حسین چشتی ہمیں روحانی غذا ضرور کھلائیں گے۔ ہم اور آپ اسی روحانی غذا کے لیے یہاں پر تشریف رکھے ہیں۔ کچھ دیر گفتگو کروں گا، میں کوئی بڑا علامہ یا مقرر نہیں ہوں، بس بزرگوں کا کرم ہے، ٹوٹی پھوٹی الفاظوں میں بول لیتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ پیغام دے گئی ہے مجھے باد صبا گاہی کہ عارفوں کا مقام ہے بادشاہی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج عمل خطرے میں نہیں ہے، عمل خطرے میں نہیں ہے، خطرے میں اگر ہے تو عقیدہ ہے اور ایمان ہے۔ ضرورت اس کی ہے جو خطرے میں ہے، تو ضرورت کس کی ہے؟ وہی عقیدہ اور ایمان کی۔ عمل خطرے میں نہیں، ہر کوئی نماز کی دعوت دے رہا، جو لوگ نماز کی دعوت دے رہے ہیں کہتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ میں اپنی زبان میں کہوں گا نماز دین کا کھمبا ہے۔ یہ کہتے ہیں نماز دین کا کھمبا ہے، ٹھیک ہے بھائی، نماز دین کا کھمبا ضرور ہے، اس کھمبے کو گاڑیں گے کہاں؟ کھمبے کو گاڑنے کے لیے زمین ہونا، وہ زمین کس کی؟ ایمان اور عقیدے کی زمین ہے تو کھمبا گاڑیں گے، جس کے پاس ایمان اور عقیدے کی زمین نہیں ہے وہ کھمبا کہاں گاڑیں گے؟ تو ہمیں بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ان اولیاء اللہ کے پاس ایمان اور عقیدے کی زمین ہے، وہ کھمبا گاڑتے ہیں اپنی زمین پر۔ یہ لوگ بغیر زمین کے صرف
नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है, दीन का खंबा है। खंबा लेकर दौड़ते रहेंगे मगर इनका जमीन मजबूत नहीं है, ईमान और अकीदे की जमीन इन्हें नहीं है। सिर्फ दौड़ते जाओगे, क़यामत तक दौड़ेंगे मगर तुम अपनी जमीन पर उस खंबे को गाड़ नहीं सकते। आप गौर करें कि हर जमात वाला अपनी जमात बनाता है तो उनका मुल्ला अपनी जमात का बानी होता है। तबलीग जमात को ले लीजिए, क्या बात है, क्या कहने। जमात इस्लामी को ले लीजिए, अबुल अला मौदूदी, ये भी उन्हीं का मुल्ला उसका बानी है। अहले हदीस को ले लीजिए, उन्हीं का मुल्ला उनका बानी है। सारे जमात वालों के बानी अपने मुल्ला, अपने बानी को बनाया है। लेकिन हम बड़े खुश नसीब हैं, हम अहले सुन्नतुल जमात वाले हैं। हमारा बानी कोई मुल्ला नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे बानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने हदीस भी सुना होगा, माना अलैहि व असहाबी, मैं और मेरे सहाबा की सुन्नत पर, मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करेंगे वही कामयाब होंगे। 72 फिरके होंगे मगर मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। 72 के 72 जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका कौन जन्नती होगा? आका ने फरमाया माना अली, यानी मेरी सुन्नत, वासहाबी, यानी वासहाबी कहते हैं जमात, सुन्नत अहले सुन्नतुल जमात, यानी अहले सुन्नतुल जमात ही वह हक पर होगा। 72 के 72 नाहक होंगे, जहन्नमी होंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें इस जमात में पैदा किया जिसका बानी कोई मुल्ला नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह हुसैन चिश्ती अलैहि रहमा का उस उर्स शरीफ में यकीनन हमें रूहानी ग़िज़ा मैसर होगी। जब हमें रूहानी ग़िज़ा मैसर होगी यकीनन हम कामयाब हो जाएंगे। आप भी औलिया अल्लाह के दर पर आइए, औलिया अल्लाह की बारगाह में आइए, इनसे मोहब्बत करिए, इनसे अकीदत रखिए और ईमान को मजबूती से बनाए रखिए। आप अपने बच्चों को भी ईमान के साथ मजबूती से थामे रखिए। कहीं ऐसा होता है बाप सुन्नी है, बच्चे देवबंदी हो जाते हैं, बाप अहले सुन्नत है, बच्चे अहले हदीस हो जाते हैं, बाप अहले सुन्नत वाला है, बच्चे तबलीगी जमात वाले होते हैं, बाप नियाज व फातिहा वाला होता है, ये बच्चे जो सिर्फ नमाज वाले होते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें बड़े खुश नसीब हैं, हम नमाज वाले भी हैं, नियाज वाले भी हैं। आप भी अपने बच्चों को नमाज वाले भी बनाना, नियाज वाले भी। बेशक। और मैंने कहा मेरी आदत है कि मैं दक्कनी जुबान में थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ, कि मेरी आदत है कि मैं देखता ही हूँ कि तकरीर के सुनने वालों के दिमाग में मेरी बात पहुँच जाए। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी आदत। अब देखिए, एक मर्तबा का वाक़या है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ईसाई आया, यानी ईसा पैगंबर अलैहिस्सलाम को मानने वाला ईसाई आकर कहने लगा, आप नमाज में सजदा सो क्यों करते हैं? नमाज में सजदा सो क्यों करते हैं? इमाम आज़म अबू हनीफा ने कहा, वाजिब अगर छूट गई तो सजदा सो करते, नमाज हो जाए। उसकी वजह क्या है? वाजिब छूटने की वजह क्या है? आखिर वाजिब छूटता क्यों है? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, शैतान आधा इमाम को भड़का देता जिसकी वजह से वाजिब छूट जाती, सजदा सो करके नमाज आता। अरे ईसाई कहने लगा, तुम्हारी नमाज अफजल तरीन इबादत है, वो नमाज जो शान बंदगी है, वो नमाज जो विकारे जिंदगी है, रज़ाए इलाही का बायस है, ऐसी नमाज में शैतान आता और वसवसे डालकर उसकी नमाज को बेकार करने की कोशिश करता। उससे बेहतर ये है कि आप ईसाई आ जाओ, इससे बेहतर ये है कि आप ईसाई हो जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शैतान नहीं आता, बहकाता नहीं। अल्लाह अकबर। वो इमाम आज़म अबू हनीफा ने क्या ही खूब जवाब दिया, क्या बेहतरीन जवाब दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक गांव में, सारे गांव में झोपड़ियां ही झोपड़ियां हो, अगर बीच में एक बड़ा महल हो,
बड़ी बिल्डिंग वाला हो, डाकू लोग डाका डालने के लिए जब आएंगे, क्या उस महल में डालेंगे या झोपड़ियों पे डालेंगे? ईसाई कहने लगा उस झोपड़ियों पे क्या मिलेगा, झोपड़ियों में उसे डाकुओं को मिलेगा क्या? अगर वो डाका डालेंगे तो बिल्डिंग पे डालेंगे, उस बड़े बिल्डिंग पे डालेंगे, इसलिए उसे माल और दौलत मिलेगी। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं शैतान तुम्हारे पास आके क्या करेगा, तुम्हें वहां तो शैतान को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए शैतान हमारे पास आता है, बरकत रहता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, शैतान आपके पास भी आता है, यहाँ क्यों जाते हैं? शैतान ये नहीं समझना शैतान कैसा रहता, दो पैर का भी ऐसा शैतान इन औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने से रोकने लगा, इनकी बारगाह में तौहीन करने लगा, तो समझना ये भी एक शैतान है, समझना ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है। अगर आपको कहीं भी अगर औलिया अल्लाह की बारगाह में रोकने की कोशिश करें तो समझ जाना ये शैतान है। आज लोग करते हैं, ये दौर ऐसा आ गया कि पिछले दौर में काफिर लोग जो बोली बोलते थे आज मुसलमान कहलाने वाले बोल रहे। इस वली की बारगाह में क्यों जाते? उरुस हजरत सैयद शाह अली हुसैन चिश्ती की बारगाह में जाने से तुम्हें क्या फायदा मिलता? उत्तर प्रदेश में एक बुजुर्ग है, मई के महीने में जो धूप होती है ना, तो हजरत बैठे हुए थे, उस बदअकीदा भी हजरत के पास की बारगाह में आया। हजरत के एक मुरीद नवाब साहब थे, हकीकत में नवाब साहब थे। अब हजरत के मुरीद थे, वो पंखा कर रहे थे, हजरत के मुरीद पंखा कर रहे थे। बदअकीदा आगे बैठा, थोड़ी देर बैठने के बाद अपना जहर उगला। क्या कहा? हजरत ये उर्स कहीं को होता? क्या बोला? ये उर्स कहीं को होता, लोग दादा के पास नहीं जाते। हजरत जो है औलिया अल्लाह का बड़ा अजीब मामला होता, इसलिए कहते हैं उलमा की महफिल में बैठो तो जुबान संभालो, या औलिया अल्लाह की महफिल में बैठो तो दिल को संभालो। उलमा अगर होते तो उसे जवाब दे देते, लेकिन वली वो है जवाब देता नहीं बल्कि दिखाता है। वली वली वो है जो पढ़ाता नहीं दिखाता है। अब उस बुजुर्ग की बारगाह में उसने सवाल किया, वली की बारगाह में जाते क्यों? हजरत बोले जाओ दूर जाओ, वहां पे बैठ। मई का महीना था, धूप का, दूर जाके बैठा। कितनी देर बैठेगा बेचारा? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, सारा बदन पसीने से चूर हो गया, समझे ना भाई? सर से चेहरे से पूरा पसीने से पानी टपकने लगा। फिर परेशान 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 नजर आया। फिर हजरत बुलाया इसको, हाँ बाबा। हजरत के करीब बैठा, हजरत के करीब बैठा। जो नवाब साहब जो पंखा कर रहे थे, वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि नवाब साहब तुम जो पंखा कर रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं या इसके लिए? क्या बोले? तुम जो पंखा कर रहे हैं ये क्या मेरे लिए कर रहे हैं या इसके लिए? तो नवाब साहब थे, बोले मैं इसके लिए मैं क्यों करूंगा, जिसके जैसे नौकर 56 मेरे दरबार में पड़े, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये मेरे पीर है, तुम मेरे पीर है, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो बुजुर्ग उस शख्स से मुखातिब होते हैं, बेटा यहाँ बैठा है, कैसा दिख रहा तेरे को, वहां से यहाँ कैसा दिख रहा? बोले हजरत बहुत अच्छी हवा आ रही। क्या बोला? बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही। बोले किसकी हवा आ रही है, किसके लिए है? जो पंखा नवाब साहब जो कर रहे हैं तेरे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कर रहे हैं। मेरे लिए नवाब साहब पंखा कर रहे हैं, हवा मेरे को आ रही, मेरे तोफल से तुझे आ रही। अब तू पूछा औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, वहां जाने से क्या फायदा है? सुन, इंद सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, औलिया अल्लाह का सिर्फ यहाँ जिक्र हो रहा तो रहमतों की बारिश होती, और जहाँ खुद औलिया अल्लाह हो वहाँ रहमत की बारिश का आलम क्या होगा? तो बुजुर्ग फरमाते हैं वहाँ रहमत की बारिश होती। अगर तू वहाँ जाता, अगर रहमत के बारिश के छींटे तेरे बदन पर पड़ जाते, तेरी नजात के लिए वही रहमत के छींटे ही काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत औलिया जिंदाबाद। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इन औलिया अल्लाह के पास आने से हमें यह फायदा मिलता है, यह
अल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयद शाह अली हुसैन चिश्ती अली रहमा की बारगाह में रहमतों की बारिश करता है। अगर वो रहमत के बारिश के छींटे हम पर पड़ गए, हमारी नजात के लिए यही रहमत के बारिश के छींटे ही काफी है। और इनकी बारगाह में आना तो बड़े अदब व एहतराम के साथ आना। अगर यहाँ बेअदबी गुस्ताखी की तो फिर कामयाब नहीं होंगे। बड़े अदब के साथ आना, अदब का ये मुकाम है। और औलिया अल्लाह पहले अदब सिखाते, उसके बाद में फिर पहले अदब फिर उसके बाद तालीम। पहले अदब इसलिए कहते हैं कि औलिया अल्लाह की बारगाह में बैठो तो दिल को संभालो, उलमा की महफिल में बैठो तो जुबान संभालो। एक बुजुर्ग का वाकया है। हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बड़े हसीन और जमील खूबसूरत चेहरे वाले जो खानका में आकर गिर गिराकर रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। हजरत का मुरीद जो है दौड़ते दौड़ते हजरत के पास गया, जाकर कहने लगा, हजरत बड़े हसीन और जमील खूबसूरत नजर आ रहे हैं कोई बुजुर्ग, मगर गिर गिराकर रो रहे। हजरत मेरी गलती को माफ करो, हजरत मेरी गलती को माफ करो, मेरी खता को माफ करो, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मुझसे बेअदबी हो गई, रो रहे। हजरत का मुरीद गौसे पाक से अर्ज करता है, हजरत क्या मामला क्या है? दिखने में बड़े हसीन और जमील खूबसूरत नजर आते हैं, मगर रोना उनका छूट नहीं रहा, हमेशा रो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये खुतुब थे। क्या थे? ये रोने वाले खुतुब थे। इनके साथ और दो खुतुब भी थे। क्या फरमाते हैं? देखिए, औलिया अल्लाह का मुकाम बता रहा हूं, इस वाकये को बता। ये खुतुब हैं जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी खता की लफ्ज़ की माफी मांग रहे हैं, ये खुतुब थे। और इनके साथ और दो भी खुतुब थे। वो वाकया ये कि वो आसमान पर हवा में उड़ रहे थे, तीनों खुतुब हवा में उड़ रहे थे। अब जैसे ही हुजूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खानका आई, दोनों खुतबों ने अर्ज किया, ये गौसे पाक का दर है, गौसे पाक की खानका है, या अदब का मुकाम है, या उड़ना नहीं चाहिए बल्कि जमीन पर चल कर जाना चाहिए, इसलिए अदब है। वो जो तीन खुतुब ने दो खुतुब जमीन पे आकर चलने लगे, ये खुतुब जो मैं भी एक खुतुब हो के हवा में उड़ने लगे। ये खुतुब जो खुतुब थे गौसे पाक की खानका के पार होने तक ये पैदल चले गए। वो जैसे ही गौसे पाक की खानका से थोड़ा दूर गए, अल्लाह ने उनकी खुतबियत को छीन लिया और गौसे पाक के दर पे डाल दिया। अल्लाह ने उनकी खुतबियत को छीन लिया, गौसे पाक के दर पे डाल दिया। अब वो अपनी इस खता से माफी मांग रहे हैं। अब बताओ दोस्तों, औलिया अल्लाह में खुतब जैसी शख्सियत अगर थोड़ी सी बेअदबी कर दें, तो जब उनकी खुतबियत छीन ली जाए तो हम अगर बेअदबी कर देंगे, हम अगर गुस्ताखी करेंगे, क्यों नहीं बाबा, हमारा ईमान क्यों नहीं जाएगा? अरे ऐसा जाएगा जैसे तीर शिकार से निकल जाता। गुस्ताखी कभी नहीं करना, अदब के साथ आना और अदब के साथ जाना। वक्त बहुत हो गया, क्योंकि ये वक्त तकरीर का नहीं, मैं समझता हूँ सोने का है। फिर इंशाअल्लाह कभी मैं आऊंगा तो फिर मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। आप जब भी इन औलिया अल्लाह की बारगाह में आओ, बड़े अदब व एहतराम के साथ आओ और नीयत अच्छी लेकर आना। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। इनके सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा, इनके सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। एक वाकया बताकर मैं अपनी जगह से नीयत के तरफ से हुजूर सैयदना ख्वाजा खाजगान अताए रसूल ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमतुर रिजवान, आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के राजा महाराजा है। कुर्सी पे कोई भी बैठो, ख्वाजा तो मेरा राजा है ना, ख्वाजा तो मेरा राजा है। अब उनकी बारगाह में एक अंधा शख्स, क्या अंधा समझते हैं, अंधा शख्स, या ख्वाजा मुझे आंख दे दो, या ख्वाजा मुझे आंख दे दो। कितने साल से मांग रहा था वो? 12 साल से सिर्फ आंख मांग रहा था। कितने साल से?
12 साल से या ख्वाजा मुझे आंख दो, या ख्वाजा मुझे आंख अता करो, या ख्वाजा मुझे आंख अता करो। एक दिन ऐसा आया, औरंगजेब बादशाह आप जानते हैं, वो भी विलायत के मुकाम पर फायज थे। बेशक आपका आलम ये था, किसी साहिब मजार पर जाकर सलाम अर्ज करते, अगर उसका कब्र से जवाब ना आता तो उस मजार को निकाल देते थे। आपका ये आलम था। अब वो आलमगीर बादशाह वो भी विलायत के मकाम पर पहुंचे हुए। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं, कानों में आवाज आई, या ख्वाजा मुझे आंख दे, या ख्वाजा मुझे आंख दे। औरंगजेब बादशाह उस अंधे को पकड़ लिया, पकड़कर पूछा, ये अंधे बता तू क्या मांग रहा है? क्या कहा? ये अंधे बता तू क्या मांग रहा है? वो अंधे को क्या पता है बादशाह है क्या राजा है क्या है, उसे क्या पता। वो कहने लगा मैं ख्वाजा से आंख मांग रहा हूँ। क्या कहने लगा? मैं ख्वाजा से आंख मांग रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह कहते हैं, अंधे बता तू कितने साल से आंख मांग रहा है, कब से आंख मांग रहा? वो अंधा कहता मैं 12 साल से आंख मांग रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह वो भी विलायत के मुकाम पर रहने वाले, वो कहते हैं तू 12 साल तक आंख मांगा और मेरे ख्वाजा तुझे आंख ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तूने 12 साल तक मेरे ख्वाजा के दर पर आंख मांगा और ख्वाजा ने तुझे आंख अता ना की, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे ख्वाजा का दर वो दर है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया। तू मेरे ख्वाजा को बदनाम कर रहा है। मैं औरंगजेब बादशाह हूँ, पहचानता है तू मुझे? वो कांपने लगा, थरथराने लगा। बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई। औरंगजेब कहते तू सही बता कितने साल से मांग रहा है? वो कहता है मैं 12 साल से आंख मांग रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह कहते हैं मैं ख्वाजा के दर पर जा रहा हूँ, हाजिरी देकर वापिस आने तक तेरी आंख आए तो ठीक, वरना तेरा सर खत्म कर दूंगा, वरना तेरा सर खत्म कर दूंगा। औरंगजेब बादशाह अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं, उधर फातिहा पढ़ रहे हैं। वो फकीर रोजाना ख्वाजा से आंख का सवाल कर रहा था। अब ख्वाजा से कह रहा है, ए ख्वाजा रोजाना मैं आंख का सवाल करता था, ए ख्वाजा मैं रोजाना आंख का सवाल था, अगर तुमने आंख अता ना की, आज तो मेरी जान का सवाल है। रोज तो आंख का सवाल था, आज मेरी जान का सवाल है। या ख्वाजा मुझे आंख अता कर दीजिए, अगर मुझे आज आंख अता ना भी, मेरी जान चली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब 12 साल तक उसने दरे ख्वाजा पर आंख मांगता रहा, आंख मांगता रहा, लेकिन औरंगजेब बादशाह ने हाजिरी देकर वापस आई। उस अंधे की तरफ देखते हैं तो आंख आ जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बादशाह से अर्ज करने लगते हैं। सिपाही लोग अर्ज करते हैं, हुजूर ये आप ही का करम होगा, हुजूर ये आप ही की करामत होगी। औरंगजेब कहते हैं नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ उसे धमकी दी थी। अगर तूने 12 साल तक आंख मांगा है, ख्वाजा तुझे आंख अता ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आज तुझे आंख अता न हुई, तेरा सर खत्म कर दूंगा। मैंने उसे जान की धमकी दी। उसने 12 साल तक सिर्फ जुबान से आंख मांगा था, जब उसके जान की बारी आई तो दिल से आंख मांगा। ख्वाजा ने उसे आंख अता कर दी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। अरे इनके सरकार में कुछ भी नहीं, नीयत के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते औलिया। दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है। अरे इनके सरकार में कुछ भी नहीं, नीयत के सिवा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह।